So the next property is property number 5, integration 0 to a f of x dx। अभी देखो यहाँ पे भी लोअर लिमिट में 0 है, सो लोअर लिमिट में 0 का ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो याद रहेगा, और कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है वो भी आइडिया मिलेगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx which is equal to, there are two condition। first condition is 2 into इंटीग्रेशन 0 to a by 2। देखो लोअर अपर लिमिट a था, अभी क्या हो गया a by 2 f of x dx। when we can use this property, if f of a minus x is equal to f of x। अगर f of a minus x का वैल्यू f of x हुआ तो ये प्रॉपर्टी यूज करना है, दैट इज द फर्स्ट वन। Otherwise we can write direct 0, this is equal to, direct we can write 0 if f of a minus x is equal to minus f of x। there are two conditions, ये प्रॉपर्टी का दो कंडीशन है, ठीक है। कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है ये दोनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। if f of a minus x equal to minus f of x, then direct we can write 0, but if f of a minus x equal to f of x, then you have to use this property। okay, property number 6, इंटीग्रेशन 0 to twice a, पहले था 0 to a, now 0 to twice a f of x dx which is equal to 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of twice a minus x dx। प्रैक्टिस करना है बहुत, मैं पहले ही बोल दिया। ओके, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, 6 और 7 में कुछ डिफरेंस नहीं है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 0 to twice a, here also 0 to twice a f of x dx। But for the seventh one, here also two conditions are there. That is, first one is 2 into integration 0 to a f of x dx if f of twice a minus x equal to f of x। okay, यहाँ पे था f of a minus x equal to f of x, तो था 2 into 0 to a, and 0 if f of twice a minus x is equal to minus f of x। this is the सेवेंथ वन। तो सिक्स और सेवेंथ में तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी कहां पे यूज करना है प्रैक्टिस के ऊपर, मैं सिक्स्थ का एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स dx which is equal to, here also two conditions are given, 2 into integration 0 to a f of x dx if f of x is an even function। now how can we say that the given function is even or odd? if f of minus x equal to f of x, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। if we get f of minus x equal to f of x, then we can say that the given function is even, and if the function is even, then you have to use this formula। but if the function is an odd function, how can we identify or check if f of minus x equal to minus f of x? if we use this condition and if we satisfy this condition, then direct we can write answer 0। okay, प्रॉपर्टी नंबर 9, इसका भी प्रूफ जरूरत है, तो प्रूफ भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। इंटीग्रेशन a to b f of x dx which is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx। it is almost like property number 4, almost a to b f of x dx। अब इसका प्रूफ चाहिए, राइट हैंड साइड से शुरू किया, क्या है a plus b minus x। so let a plus b minus x is equal to t, substitution method। therefore x equal to a plus b minus t we can write, so differentiate both sides with respect to x, we get dx equal to minus dt, because here the actual variable is x, so you have to differentiate both sides with respect to x only। now next task क्या है हम लोगों का, we have to change the limits since we are using substitution method। so first one is when lower limit is a, देखो when क्वेश्चन में lower limit a था, when x is equal to a t equal to b मिलेगा, यहाँ पे पुट करना है, x के जगह में a पुट करो, t का वैल्यू b मिलेगा। सिमिलरली when x equal to b, t is equal to a। so start from right hand side, that is integration a to b f of a plus b minus x dx which is equal to, when x equal to a, t का वैल्यू क्या मिला b, so b to a f of t minus dt। why? since a plus b minus x equal to t consider किया, and dx equal to क्या मिला minus dt, so that's why I've written here minus dt। ये माइनस साइन को आगे लेके गया,
बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी, माइनस इज देयर, प्रॉपर्टी नंबर 2 याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इफ यू इंटरचेंज द लिमिट साइन चेंज हो जाता है, तो इंटरचेंज कर दिया, देखो बी टू ए था अभी ए टू बी हो गया, तो मतलब माइनस साइन हो जाएगा प्लस एफ ऑफ टी डी टी। तो ये स्टेप में क्या यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 1। सो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, सो दिस इज द प्रूफ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 1 का यूज किया, यूज करके नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रूफ किया। ओके, तो मैं क्या बोला था, प्रॉपर्टी नंबर 6 का मैं एक एग्जांपल दूंगा। व्हाई, बिकॉज 6 और 7 में लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा 6 कब यूज करना है, 7 कब यूज करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन एग्जांपल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 हाउ कैन वी इवैल्यूएट। ओके, let's take one example. Evaluate or prove that integration 0 to twice pi 1 by 1 plus e to the power sin x is equal to, sin x dx is equal to pi. Integration 0 to twice pi 1 by 1 plus e to the power sin x dx is equal to pi. तो इसको कैसे प्रूफ करना है, देखो कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा, 6 और 7। मैं क्या बोला था, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करके, ये आइडिया मतलब प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस पाई 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पार्ट 0 टू व्हाट, 0 टू ए, ट्वाइस ए को ए करना है तो ट्वाइस पाई को पाई करना पड़ेगा, 0 टू पाई 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ट्वाइस पाई 0 टू, sorry this one will be twice a, let me check the question once. Okay, 0 to, sorry, this is 0 to a, 0 to pi 1 by 1 plus e to the power sin x dx. Just I am using property number 6. Okay, so this is equal to integration 0 to pi. एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है कभी कभी, so here also I am going to use another property in the next step. क्या प्रॉपर्टी है, देखो इंटीग्रेशन 0 to pi 1 प्लस, मैं क्या बोला था, लोअर लिमिट में अगर एग्जैक्टली 0 होगा तो देन वी कैन यूज प्रॉपर्टी नंबर 4। सो 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट इज हियर पाई, सो ई टू द पावर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाई 1 plus e to the power sin of twice pi minus x dx. We can use here twice pi also because the actual limit is here twice pi. So in the first case I am using pi minus x, in the second case I am using twice pi minus x. So integration 0 to pi 1 by 1 plus e to the power sin of 180 minus theta. 180 minus theta lies in which quadrant? Second quadrant. So second quadrant में sin क्या होता है, पॉजिटिव, e to the power sin x dx plus integration 0 to pi 1 by 1 plus e to the power 360 minus theta lies in the fourth quadrant. So this will be e to the power, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सो इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, सो ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस ओनली पॉजिटिव, साइन तो नेगेटिव होगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 बाई 1 प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स can be written as 1 by e to the power sin x or not. So इसका अगर LCM लूंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा e to the power sin x by 1 plus e to the power
साइन एक्स डी एक्स। सो लिमिट सेम है दोनों केस का, सो लिमिट सेम है तो कॉमन ले सकते हो 0 to पाई। देखो 1 plus e power sin x 1 plus e power sin x, तो if I take LCM it will be 1 plus e power sin x only. What about numerator? 1 plus e power sin x 1 plus e power sin x whole into dx, तो ये कैंसिल हो गया। सो इंटीग्रेशन 0 to पाई dx, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to पाई, इंटीग्रेशन dx इज x 0 to पाई। सो अगर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करूंगा तो पाई मिलेगा। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर? तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6 का एग्जांपल। ओके, आई विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।